Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start with chapter number 7. Okay, till chapter number 6, we have completed in your previous videos. Now we are going to see your chapter number 7. The name of your chapter number 7 is Houses We Live In. In this chapter, my dear student, we are going to see what are the different kind of houses across the globe. Okay, and as well as we are also going to see in what way we are going to keep our houses clean. Okay, so all these points we are going to discuss in this chapter. Now come with me and let's see the chapter. All of us live in houses. A house protects us from heat, cold, rain, sun, thieves, and animal. Okay, so my dear student, all of us, all human beings used to live in their houses. घर क्या करते हैं, हमें चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो, चाहे कितना भी बरसात हो रहा हो, चाहे कितना भी तेज तूफान आया हो, हमारा घर हमें बचाता है. ओके, आवर हाउस प्रोटेक्ट अस. दैट्स व्हाई वी नीड हाउसेस. ओके, A house becomes a home when people live in it. आप लोगों ने हाउस और होम का कॉन्सेप्ट सुना होगा. ठीक है, हमें लगता है कि हाउस और होम सेम है. बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता. हाउस का मतलब क्या है कि आपने घर बना दिया, लेकिन वो घर घर कब बनता है? ठीक है, वो घर जो आप लोगों ने चार दीवारी का घर बना हुआ देखा है, वो घर घर कब बनता है? जब उसमें फैमिली मेंबर्स रहते हैं. ठीक है, तो यानी जब वो एक स्ट्रक्चर बना होता है उसे हम हाउस बोलते हैं, और जब उसमें हम फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिर उसे हम बोलते हैं होम. ठीक है, वी यूजुअली लिव इन आवर होम्स विद आवर फैमिली मेंबर्स. ओके, तो हम सारे लोग अपने घरों में रहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ. People around the world live in different types of houses. The type of houses we build depend on the climate of the place, the material available to build the houses, the amount of money available to build the house. Similarly, my dear student, why we need different types of houses? Okay, why we build different type of houses around the globe? Why we can't build a single pattern of houses? Because my dear student, it totally depends upon the climate of our environment. Okay, so where we used to live. Okay, so according to that environment, we are going to build our houses, as well as the materials availability. Okay, the materials which are available in that particular area, then only by using that materials we are going to build our houses. Okay, and the third point, हमारे पास पैसे जितने होंगे हम उसी के हिसाब से तो अपने घर बनाएंगे. ठीक है, तो चलो आ जाओ, अब हम लोग ये देखते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले कीप इन माइंड. ओके, it is a point here what we have to do. Okay, keep in mind. Okay, here what we have to keep in mind, the early man lived in caves. अच्छा, हम लोग तो बहुत सारे घरों में रहते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स के घरों में रहते हैं. अर्ली मैंस कहाँ रहते थे? अर्ली ह्यूमन बींग्स रहते थे गुफाओं में, यानी केव्स में रहते थे. Okay, now see different kind of houses. Now my dear students, we are going to see what are the different kind of houses which we human beings build across the globe. Let's see. A house built with mud, leaves, straw and bamboos is a kacha house. Okay, what is the meaning of kacha house? The houses which are built with the help of mud, leaves, straw and bamboo trees. Okay, these are called as kacha house. Okay, kacha house concept is popular in village areas. It is mostly found in village. This house is not very strong. Strong winds and heavy rainfall can destroy it. Huts and slums are examples of kacha houses, and this type of kacha houses are not very strong. Okay, a heavy storm or heavy rainfall may damage this type of houses. And the most important example of this type of houses are the houses present in slum areas and huts. Okay, so here you can see, my dear student, this is a picture of a kacha house. Now we are going to see the pakka house. What is the meaning of pakka house? Let's see. In town and cities, most of the houses are made of bricks, steel and cement. Okay, if in village areas the houses are made up of mud and bamboo stakes. Okay, similarly on the city area all the houses are strong. They are made up of, or they are built with bricks, steel and cement. Okay, that's why we call them pakka houses. Okay, there are the different types of pakka houses, and just like different type of kacha houses, we also have a lot of differentiation, a lot of varieties of pakka houses in our cities and town areas. Example, you can see bungalows, apartments and multi-story buildings are the good examples of pakka houses. Okay, so here you can see, my dear student, this is the picture of a pakka house. Now we are going to see sloping roof. अच्छा, अभी हमने कच्चा हाउस और पक्का हाउस के बारे में देखा. अब हम लोग उन घरों के बारे में देखने जा रहे हैं जिनके जो रूफ होते हैं, जिनके छत होते हैं, वो स्लोप के शेप में होते हैं. ठीक है, in places which have heavy rain and snow, houses have sloping roof.
रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ इजिली फ्रॉम अ स्लोपिंग रूफ। अच्छा, ये स्लोपिंग रूफ के हाउसेस कहाँ पे बनते हैं? ये स्लोपिंग रूफ के जो हाउसेस होते हैं ये उन एरियाज में बनाए जाते हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है या बहुत ही ज्यादा हैवी स्नोफॉल होता है। क्योंकि अगर आप वहां पे कच्चा हाउस बनाओगे तो वो खराब हो जाएंगे, पक्का हाउस बनाओगे तो वो वहीं पे अटके रह जाएंगे उसके रूफ पे। इसीलिए हमें यहाँ पे स्लोपिंग हाउस चाहिए। इस शेप में ये होते हैं, जैसे ही उस पर कोई भी स्नोफॉल होगा, कोई भी रेनफॉल होगा, वो सारे वहां से नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, rain water snow slide off easily from a sloping roof. Here you can see this is the example of sloping roof. Now we are going to see stilt houses. Okay, this is the concept very popular in our northeastern states of India. In places like Mizoram, Assam, and Nagaland, it rains very heavily. There are thick forests on the hills around the villages. So the people build their houses on tall stilts or posts. The stilt raise the houses and keep them safe from wild animals and rain. Okay, my dear students, stilt houses क्या होते हैं? अभी हमने देखा स्लोपिंग रूफ क्या है, जहां पे जो उसकी जो छत होती है वो इस टाइप में स्लोप के शेप में होती है। स्टिल्ट हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जो किसी भी उस पे खड़े होते हैं, टॉल स्टिल्ट या पोस्ट के ऊपर, मतलब एक उनके नीचे काफी लंबे लंबे उनके पैर टाइप के बना दिए जाते हैं जिस पर वो खड़े रहते हैं, पिलर्स बनाए जाते हैं, उन पिलर्स के ऊपर इन घरों को बनाया जाता है। वैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओके यहाँ पे क्या होता है, मेघालय, यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, अगर बारिश इतनी ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे ना आप कच्चा हाउसेस बना सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली सिटी एरिया की बात नहीं कर रही हूँ। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु यूज्ड टू लिव इन ट्राइबल एरियाज, ओके, एंड द पीपल हु यूज्ड टू लिव नियर द फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, ये इस टाइप के स्टिल्ट हाउसेस ये बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया के पास में होते हैं, फॉरेस्ट एरिया का मतलब क्या, वाइल्ड एनिमल्स का खतरा रहेगा। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए, हैवी रेनफॉल से बचने के लिए ये ऐसे घरों को बनाते हैं जो पिलर्स के ऊपर खड़े होते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ स्टिल्ट हाउसेस। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस बोट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस बोट? लेट्स सी। Kerala and Kashmir are famous for their houseboats that floats on lakes and river. My dear student, in our country India, Jammu and Kashmir, specifically Kashmir region and the southernmost state of our country India, that is Kerala, these two states are world famous for their houseboats. Okay, these two states are famous for their lakes. Like Kashmir is famous for its Dal Lake. Okay, Kerala is also famous for its boating races and all. And you know what? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत से ऐसे घर बनाए जाते हैं जो नाव के ऊपर होते हैं, तो इसीलिए इनको हम फ्लोटिंग हाउसेस कहते हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाउस बोट्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी टेंट। अब टेंट क्या होता है? यस, बहुत सारे हमारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे एरियाज में लोग टेंट हाउसेस में भी रहते हैं। आ जाओ देखते हैं। इन मैनी सिटीज वी कैन सी पीपल लिविंग इन टेंट। A tent is a temporary structure made of canvas that can be moved from place to place. It can be easily put up and dismantled. अच्छा, बहुत सारे शहरों में, आज भी बहुत सारे शहरों में आप लोग देखोगे लोग टेंट में रहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इजीली मूवेबल है। आपको जहां पे भी नाइट स्टे करना है आप वहां पे टेंट ओपन कर लीजिए एंड नेक्स्ट डे आप उसको हटा सकते हो। ओके, so this is the this is the picture of tent houses. Now we are going to see the example of igloo type of houses. Now what is the meaning of igloo houses? Let's see. Eskimos live in igloos. Igloos are made of big blocks of snow. Large igloos can have up to 5 rooms with 20 people living in them. अच्छा, इग्लू क्या होता है? यहाँ पे एस्किमोस रहते हैं, ग्रीनलैंड के लोग, क्योंकि ग्रीनलैंड क्या है, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट एरिया माना जाता है वर्ल्ड का। ठीक है, साइबेरिया रीजन है जो हमारे रशिया का है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऑल टाइम पूरे होल ईयर ऑलमोस्ट यहाँ पे स्नो कवर्ड रहता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे लोग एक स्नो से बना हुआ घर बनाते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं स्नो के, इससे ये घर बनाते हैं। ठीक है, और इसमें ऑलमोस्ट 5 रूम होते हैं और उन 5 रूम्स के अंडर में ऑलमोस्ट 20 लोग रह सकते हैं। ठीक है, सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर ऑफ इग्लू हाउसेस। Now we are going to see the कारवां, the concept of कारवां. Now what is the meaning of कारवां? Let's see. Caravans and trailers are houses on wheels. जो कारवां और ट्रेलर्स होते हैं ये वो घर होते हैं जो व्हील्स के ऊपर बनते हैं, मतलब ये बसेस में होते हैं स्पेसिफिकली। दे कैन बी ड्राइवन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पीपल लिव इन दिस हाउसेस व्हेन दे ट्रैवल अक्रॉस अ कंट्री ऑन अ वेकेशन। सर्कस ट्रूप्स आल्सो लिव इन कारवांस। अच्छा, कारवां में कोई परमानेंटली नहीं रह सकता है, इसमें लोग तब रहते हैं जब वो कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, आप लोग देखते हो कि शहर शहर में सर्कस ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो जो सर्कस में पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सारे कारवां में ही रहते हैं। ठीक है,
Town and cities are very crowded. There is very little space to build houses. So in a single site, people built tall buildings with many apartments on each floor. जो शहर और हमारे मेट्रो सिटीज है, ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा क्राउडेड होता है, यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है, ठीक है, यहाँ पे बहुत कम जगह होता है घर बनाने के लिए, तो यहाँ पे लोग कारवा में भी रहना प्रेफर करते हैं. All the people who live in such buildings share common facilities such as playgrounds. They also share the responsibilities of taking care of the building. अच्छा, जो लोग कारवा में रहते हैं ना, उन्हें वो सिंगल टॉयलेट यूज करना होता है, सिंगल प्ले ग्राउंड यूज करना होता है. ये जितने भी कॉमन फैसिलिटीज है जो आप अपने घरों में सिंगल इंडिविजुअली यूज करते हो, कारवा में वो आपको कॉमन यूज करना होता है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट गेस्ट इन आवर हाउस. Our houses provide shelter to many animals. अच्छा, हमारे घरों में ना सिर्फ हम ही लोग नहीं रहते हैं, हमारे साथ बहुत से एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी रहते हैं. जी हाँ, बिल्कुल. आप लोग तो वैसे ये बात तो समझ ही गए होंगे कौन कौन रहता है. चलिए देखते हैं. Many animals like ants, house lizards, cockroaches, flies and spiders live in our houses. तो कौन कौन से रहते हैं यहाँ पे एनिमल्स में? इंसेक्ट रहते हैं, ठीक है, हाउस लिजार्ड रहते हैं, हाउस फ्लाइज रहती हैं, कॉकरोचेस और स्पाइडर्स रहती है. हमारे घरों के समझ लीजिए ये परमानेंट गेस्ट होते हैं जो हमेशा सारे घरों में पाए जाते हैं. Many birds make nest in the roof of our houses and window ledges. और हमारे घरों में बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं जो क्या करते हैं? नेस्ट बनाते हैं अपना, ठीक है. बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट आवर फ्रेंड. बट इनमें से सारे हमारे फ्रेंड नहीं होते हैं. Many of them like mosquitoes, rats, flies, etc. harm us. अच्छा, इनमें से बहुत सारे हमारे फ्रेंड क्यों नहीं होते हैं? जैसे मच्छर हो गए, जो रेट्स है, फ्लाइज है, ये क्या करते हैं? ये हमें हार्म पहुंचाते हैं. आप मॉस्किटो अगर आपके घर में है तो इससे क्या आपको मलेरिया होने के चांसेस हैं, ठीक है. रेट्स अगर है तो रेट्स आपको कट कर सकते हैं, आपको कोई डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है. फ्लाइज क्या करते हैं? आपके खाने को डर्टी बनाते हैं, ठीक है. तो ये सारे जो होते हैं ना, ये हमारे फ्रेंड नहीं होते हैं, ठीक है. दे स्प्रेड डिजीजेस, इनसे हमें बीमारियां मिलती हैं. We must keep our house neat and clean to prevent this pest and insects from breeding. इसीलिए हमें हमारे घरों में साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि ये सारे एनिमल्स और इंसेक्ट्स जो हमारे घरों में रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन ना बढ़े. Now we are going to see how, in what way we are going to clean our houses. See, we must keep our house neat and clean. We should have a dustbin in every room and a large bin in the kitchen. The bathroom and toilet of the house must be cleaned regularly. हमें हमारे घरों को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं? आपके घर में जितने भी रूम है, ट्राई करिए कि उन सारे रूम में डस्टबिन हो. एटलीस्ट छोटा डस्टबिन तो होना ही चाहिए, और किचन में एक बड़ा डस्टबिन होना चाहिए. कोई भी चीज आप जमीन में मत फेंकिए, उसको इमीडिएटली उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए, ठीक है. और बाथरूम और जो टॉयलेट है हमारे घरों का, उससे तो हमेशा ही साफ रखना चाहिए, ठीक है. Now we are going to see what makes a house suitable to live in. अच्छा, हमारे घरों को, हमारा घर कैसे बनता है सुटेबल, कि जिसमें हम जाकर उसमें रहते हैं. चलो आ जाओ देखते हैं. Some points are necessary to make a house suitable to live in. They are. तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? आ जाओ देखते हैं. A house must give us proper shelter. It must keep us cool in summer, warm in winter and dry in rainy season. ठीक है, हमारे घरों में प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि ठंडी के दिनों में वो हमें गर्मी दे, गर्मी के दिनों में वो हमें ठंडी दे, और बरसात के टाइम पे वो हमें सूखा रखे. किचन एंड बाथरूम शुड बी बिल्ड टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट इन देम. और हमें हमारे किचन्स को और बाथरूम्स को ऐसे बनाने चाहिए कि वहां पे जो एयर है वो इजीली पास हो सके, ताकि किचन में अगर खाना बनता है तो वो जो एयर है, उसका जो स्मेल है ना खाने का, ठीक है, तो वो क्या हो, कभी कभी नहीं होता, मम्मा अगर कुछ तड़का लगा रही है तो हम लोग को खांसी आने लगती है. तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए किचन में. बाथरूम तो हमेशा ऑल टाइम वेंटिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है. तो जो किचन और बाथरूम एरिया होता है हमारे घरों में, यहाँ पे विंडोज होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटर्स होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है. चलिए. A house must be strong enough to withstand natural elements such as heavy rain, strong wind, etc. It must keep us safe. और हमारा घर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि चाहे कितना भी तूफान आ जाए, चाहे कितना भी ज्यादा बारिश हो, वो हमें उससे प्रोटेक्ट कर सके. इन सारी चीजों का ख्याल हम कब रख सकते हैं? When we are building our houses. Okay? A house must be airy. Clean and fresh air is important for our health. ठीक है, हमारा घर बहुत ज्यादा कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, हमारे घर में प्रॉपर विंडोज होने चाहिए जो एयर को पास ऑन करना अलाउ करें, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर. We live in a house, we live in a home with our family. Absolutely right. Okay, a house become a home when we live with our family. In places which have heavy rain and snow, houses have sloping roofs.
Absolutely true. A dirty house invites many pests like rats, cockroaches, spiders, flies, mosquitoes, and lizards. Absolutely right. If your house is unclean, if you are keeping your house dirty, then you are inviting these animals or insects in your house. Garbage should be disposed of regularly and properly. Okay, you always have to dispose your garbage on regular interval of time. Okay, here is a fact corner. Let's see. A traditional rangoli is made of rice flour. It is considered as a way to welcome the gods to our home. रंगोली आप सब लोग जानते हो दिवाली के टाइम पे बनती है, बट जो ट्रेडिशनल रंगोली कलर से हम बनाते हैं, लेकिन आप जानते हो जो ट्रेडिशनल होता है रंगोली, जो हमारे इंडियन कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उससे हम चावल के आटे से बनाते हैं, राइस फ्लोर से बनाते हैं। ठीक है, रंगोली पर हम बनाते क्यों हैं? ऐसा कहा जाता है कि रंगोली बनाने का मतलब है कि आप गॉड को अपने घर में वेलकम कर रहे हो उनका आने के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। But before clearing the concept behind your exercise, I would like to clear the concept of OMR sheet. मैंने आपके previous classes में आपको OMR sheet के बारे में बताया है। OMR sheet क्या होता है? एक पिंक कलर का शीट होता है जब आपको एग्जाम देने जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, उस OMR शीट में आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन पे टिक करना होता है, और प्रॉपर सही आंसर देने का तरीका ये है कि आपको सर्कल को पूरा का पूरा कलर करना होता है। ठीक है, अगर आपने उस सर्कल में टिक कर दिया, क्रॉस कर दिया, हाफ कलर किया, या एज इट इज उसे छोड़ दिया, ये चारों मेथड्स क्या होते हैं? ये चारों मेथड्स गलत होते हैं आंसर देने के। ठीक है, तो सही मेथड क्या है? सर्कल पूरा फिल करिए। ठीक है, नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द ए पोर्शन। ए में हमें क्या करना है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक करना है। ऑल ऑफ अस लिव इन हाउसेस, रोड्स, फॉरेस्ट। ऑल ऑफ अस लिव इन हाउसेस। City and towns are very beautiful, impressive, and crowded. City and towns are very crowded. A house must be airy, crowded, dirty. A house must be airy. Now filling the blanks. A dash becomes a dash when people lives in it. A house becomes a home when people live in it. Okay, तो आप यहाँ पर लिखेंगे a house becomes a home. Okay, when people live in. Dash and dash are कच्चा houses. तो कच्चा houses के examples क्या क्या थे? चलो आ जाओ देख लेते हैं। Huts and slums. Huts and slums. Slums. Dash 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 and dash buildings are पक्का houses. तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है पक्का हाउसेस के? हमारे बिल्डिंग्स होते हैं, बंगलोज होते हैं, मल्टी स्टोरे बिल्डिंग्स होते हैं। देखिए यही है हमारा बंगलोज, अपार्टमेंट्स एंड मल्टी स्टोरे बिल्डिंग्स। चलिए यहां पे हम लिखेंगे बंगलोज, बंगलोज, apartments and multi-story buildings. Multi-story buildings. चलिए अच्छा, देयर आर डैश ऑन द हिल्स अराउंड द विलेजेस। ठीक है, देयर आर थिक, क्या होता है हिल्स अराउंड द विलेजेस? आ जाओ देखते हैं। देयर आर थिक फॉरेस्ट। ठीक है, इसका आंसर है आपका देयर आर थिक फॉरेस्ट। देयर आर थिक फॉरेस्ट। ठीक है, चलो नाउ आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। वेयर डू वी लिव विद आवर फैमिली मेंबर्स? हम कहाँ रहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ? अपने अपने घरों में। सो हियर यू आर गोइंग टू राइट हाउस। सेकंड क्या है? अ हाउस विच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। वो क्या कहलाता है? वो कौन सा घर हमारा बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता? उसका नाम है आपका कच्चा हाउस। ओके, कच्चा हाउसेस।
ठीक है। अब चलो, अ हाउस बिल्ड ऑन टॉल स्टिल्ट और पोस्ट, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं। ये देखो स्टिल्ट हाउस, यही एग्जांपल है इसका, स्टिल्ट हाउस। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर है आपका स्टिल्ट हाउसेस, स्टिल्ट हाउसेस। एस्किमोज लिव इन, एस्किमोज कहां रहते हैं? एस्किमोज आपके इग्लू में रहते हैं। अ हाउस विच कैन बी ड्राइवन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कौन से हाउस को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हो? कारवांस होते हैं। तो इसका आंसर है आपका कारवां, कारवांस। ठीक है, अब चलो आ जाओ, देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर क्यों चाहिए? ठीक है, सो इसका आंसर आपका ये रहा। आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, देखिए, ओके, वी नीड हाउसेस बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, सन, थीव्स एंड एनिमल्स। ये आपका पहला आंसर है। ठीक है, अब चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। What factors does the kind of house we build depend on? ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला तो हमारा क्लाइमेट होता है, मटेरियल्स जो है, और हमारे पास जितना पैसा है। तो ये रहा है आपका इसका आंसर। ठीक है, ओके, द टाइप ऑफ हाउसेस वी बिल्ड डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ मनी। तो इसका आंसर आपका ये तीनों पॉइंट है। ठीक है, ओके, अब सी क्या है? वाई आर स्टिल्ट हाउस बिल्ट इन असम, असम में स्टिल्ट हाउस क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ना। ये देखिए, इसका आंसर ये रहा। ओके, अब ये देखो, stilt houses are built in Assam because there are thick forests on the hills around the villages. So the people build their houses on tall stilts and posts, and as well as there are very heavy rainfall also. ठीक है, आपका यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए, अब क्या है? चौथा क्या पूछ रहा है? व्हाट इज एन इग्लू, इग्लू क्या होता है? देख लो, इसका आंसर ये रहा आपका। देखो, इग्लू, okay, igloo are houses where, okay, igloo are houses where Eskimos used to live, okay, and it is made up of big block of snow। ठीक है, ये आपका इग्लू का आंसर है। चलिए, फिर क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। आपको कच्चा हाउस और पक्का हाउस के बीच का डिफरेंशिएशन बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका आंसर ऐसे देंगे, द डिफरेंशिएशन बिटवीन कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस इज, ओके, देखो, a kacha house is built with mud, leaves, straw and bamboos. Okay, examples are hut and slums. On the other hand side, pakka houses are built in town and city areas and with the help of bricks, steel and cement. Example, bungalows, apartment, multi-story building. ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए, फिर क्या आपसे पूछ रहा है? वाई शुड वी प्रिवेंट आवर हाउसेस फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, हमें अपने घर को पेस्ट और इंसेक्ट से क्यों बचाना चाहिए? ठीक है, अब देखिए, क्यों बचाना चाहिए हम लोगों को अपने घरों को पेस्ट और इंसेक्ट से? क्योंकि ये देखो, we should keep our houses, okay, we need to protect our houses from pests and insects because they spread diseases, वो बीमारियां फैलाते हैं ना, they spread diseases। okay, चलो, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्या है? हाउ कैन वी कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन, हम अपने घर को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं? तो एग्जाम्पल ये रहे इसके सारे। ठीक है, सो इन व्हाट वे, सो फॉलोइंग आर द वेज थ्रू व्हिच वी कैन कीप आवर हाउसेस नीट एंड क्लीन। पहला क्या है? ए हाउस मस्ट गिव अस प्रॉपर शेल्टर। ठीक है, किचन एंड बाथरूम शुड बी बिल्ट टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट इन देम। ए हाउस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एनफ, okay, to withstand natural elements like heavy rainfall, storms। okay, now the fourth point, a house must be airy। ठीक है, आपका इसका आंसर है ये। एंड द लास्ट अब क्या है? व्हाट पॉइंट्स मेक अ हाउस सुटेबल टू लिव इन, अच्छा, हमारा घर कब सुटेबल बनता है रहने के लिए? तो ये रहा, ये देखो, जी से फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूं, आप उससे पहले का कट कर दीजिएगा। हाउ कैन वी कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट? इसका आंसर ये है आप लोगों का, देखिए, वी मस्ट कीप आवर हाउसेस नीट एंड क्लीन
because we should have a dustbin. Okay, in what way we are going to keep our houses clean? हमें डस्टबिन सारे रूम में रखना चाहिए और लार्ज बिन होना चाहिए किचन में, ठीक है, और साथ ही साथ बाथरूम और टॉयलेट्स को भी हमें क्लीन रखना चाहिए, ठीक है, ये आपका आंसर है। लास्ट का है व्हाट पॉइंट्स मेक अ हाउस सुटेबल टू लिव इन, ठीक है, तो कैसे आप रख सकते हो, तो यहाँ पे जो ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये है आपका लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्टिविटी टाइम। अब हमें यहाँ क्या करना है, आज देखते हैं। Visit a construction site of a multi-story building in your city, if any. Discuss about your visit in the class. अगर आपके एरिया में जहां भी रहते हैं, अगर वहां पे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहा है, आप वहां पे जाइए अपने पेरेंट्स के साथ, बट अकेले नहीं जाना, आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे। वहां पे आपने वहां पे क्या देखा है, ये चीज आप अपने पार्टनर के साथ क्लास में डिस्कस करिए। बी, collect pictures of different houses, different type of houses and paste them in your scrapbook, ठीक है, डिफरेंट टाइप के हाउसेस जो अभी हमने आपके चैप्टर में पढ़े हैं उनके फोटोज क्लिक करिए और अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट कीजिए। सी, ऑब्जर्व द हाउसेस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स लिविंग नियर बाय योर हाउसेस, ठीक है, आप जहां भी रहते हैं आपके घर के आसपास कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं आप उनके बारे में देखिए। कलर दिस पिक्चर, यहाँ पे ब्यूटीफुल हाउस का पिक्चर दिया हुआ है, आपको इसे कलर करना है, ठीक है। Okay, my dear student, in this way we have completed our chapter number 7. Now, my dear student, you have to go thoroughly through this chapter and complete all the leftover exercises. Okay. Now, I'm going to take a leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.